خداوند میں خوشی کرو. دوبارہ کہتا ہوں کہ خوشی کرو کیونکہ خداوند نزدیک ہے. باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین. ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا کی محبت اور روح القدس کی شراکت آپ سب کے ساتھ ہو. آپ کے ساتھ بھی ہو. مسیح خدا میں میرے عزیز بھائی بہنوں، آج ہم بڑی خوشی اور شادمانی کے ساتھ آمد کے تیسرے اتوار کی بات میں شریک ہوئے ہیں، اور آج کی تیسری شمع جو روشن کی جائے گی یہ ہمیں خوشی کا اور شادمانی کا پیغام دیتی ہے. وہ خوشی اور شادمانی جو خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہماری زندگیوں میں اور ہمارے خاندانوں میں آنے والی ہے. اور اشعیاء نبی اس کی گواہی دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ روح خدا مجھ پر ہے، اور اسی لیے میں اس قابل ہوا ہوں کہ خدا کی اس شادمانی کو دوسرے لوگوں کے ساتھ بانٹ سکوں. مقدس یوحنا خدا یسوع مسیح کی گواہی دیتے ہوئے خدا کی اسی خوشخبری کو دوسرے لوگوں کے ساتھ بانٹتے ہیں. آئے ہم بھی خدا سے دعا کریں کہ خدا ہمیں بھی اپنا پاک فضل عطا کرے، تاکہ ہم بھی آج جو خوشی کی شمع جلاتے ہیں یہ خوشی ہماری زندگیوں میں بھی اور ہمارے خاندانوں میں بھی ہمیشہ قائم رہے. اور آئیں آج کی اس پاک عبادت میں لائق طور پر شامل ہونے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، اور اپنی تمام غلطیوں، گناہوں اور کمزوریوں کے لیے خدا سے اور ایک دوسرے سے معافی مانگیں. میں قادر مطلق خدا کارمدی خدا باپ ہم سب پر رحم فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں داخل کرے. اے خداوند رحم کر، اے مسیح رحم کر، اے خداوند رحم کر. آج کی پاک ماس کی قربانی اشفاق اشرف، سیباسٹین گل، ریاض صدیق کے خاندان کے لیے خدا کے حضور گزرانی جائے گی.
کہ رحیم اور مہربان خدا جن تمام گھرانوں کی شکر گزاری کو قبول کرے اور گھرانوں پر ہمیشہ اپنی شفقت اور مہربانی کی نگاہ قائم رکھے۔ مسکان کے لیے جوید الدین، ندیم، نسرین پطرس، آفتاب، نصرت بی بی، شمیم اعجاز اور ابو جاوید اقبال خداوند سے شفا کے اور خدا کی برکت کے طلبگار ہیں کہ رحیم اور مہربان خدا ہمارے ان تمام بھائی بہنوں پر اپنی شفقت اور مہربانی کی نگاہ کرے اور انہیں صحت اور تندرستی عطا کرے، اور شاہد یوسف اور شاہد یوسف اور پطرس سیاد کے بچوں کی کامیابی کے لیے، اور سکندر گل اور شان اور سنی کے کاروبار کے لیے، ان خاندانوں کے تمام افراد کے لیے دعا کرتے ہیں کہ رحیم اور مہربان خدا ان تمام خاندانوں کو بڑی برکت عطا کرے، ہمیشہ ان کی حفاظت کی پانی کرے، انہیں زندگی میں بہت ساری کامیابیاں اور خوشیاں عطا کرے۔ ساگر اور گلناز اور سفیان اور لبنہ کے لیے بھی خاص طور پر دعا کرتے ہیں۔ خداوند جو رحیم اور مہربان ہے اور وعدوں کا سچا ہے اور رحم کرنے پر قادر ہے، وہ ہمارے بھائی اور بہنوں پر اپنی شفقت مہربانی کی نگاہ کرے اور انہیں اولاد جیسی نعمت سے مالا مال کرے۔ آکاش جن کی آج 23 دسمبر کو سالگرہ ہے، اور ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ رحیم اور مہربان خداوند ہمارے بھائی کو صحت، سلامتی اور تندرستی عطا کرے، اور جس طرح خداوند نے گزشتہ سالوں میں ان کی حفاظت کی ہے، اسی طرح سے خداوند آنے والی زندگی میں بھی ہمیشہ ان کے ساتھ ہو، انہیں کامیابی اور خوشیاں اور اپنی برکات عطا کرے۔ اور امین میں نصر مسیح، ارشاد بی بی اور امتیاز اور صدیق کی روح کے لیے خداوند کے حضور آج کی پاک ماس کی قدس قربانی چڑھائی جائے گی کہ خداوند ان کی روحوں کو ابدی آرام عنایت کرے اور تمام خاندانوں کو تسلی اور تشفی عطا کرے۔ آئے ہم دعا کے لیے اپنے سروں کو جھکائیں۔ اے نہایت مہربان خدا ہمارے خدا، تو دیکھتا ہے کہ ہم تیرے لوگ دل و جان سے اپنے خدا یسوع مسیح کی پیدائش کے دن کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ ہماری آج ذرا دعا ہے کہ ہمیں یہ فضل بخش کہ ہم اپنے عظیم نجات دہندے کی عید بڑے شوق، نیک ارادے، پرجوش دعا اور دلی شادمانی کے ساتھ منا سکیں۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے جو تیرے ساتھ روح القدس کی وحدانیت میں خدا ہے اور ہمیشہ سے ہمیشہ تک زندہ رہتا اور سلطنت کرتا ہے۔ آمین۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت اشعیاء نبی کا صحیفہ اس کا 61 باب، اس کی پہلی 2 آیات اور پھر 10 سے 11 آیات۔ مالک خداوند کی روح مجھ پر ہے، کیونکہ خداوند نے مجھے مسح کیا تاکہ مسکینوں کو خوشخبری دوں۔ اس نے مجھے اس لیے بھیجا کہ شکستہ دلوں کو درست کروں اور امیروں کو آزادی کی اور قیدیوں کو رہائی کی بشارت دوں، تاکہ خداوند کے سال مقبول کا اور ہمارے خداوند کے انتقام کے دن کا اشتہار دوں اور سب ماتم کرنے والوں کو تسلی بخشوں۔ میں خداوند میں نہایت شادمان ہوں گا اور میری جان میرے خدا میں خوش ہوگی، کیونکہ اس نے مجھے نجات کی پوشاک سے ملبس کیا اور صداقت کا جبہ مجھے پہنایا، دولہے کی طرح جو تاج سے سجایا گیا اور دلہن کی طرح جو اپنے زیورات سے آراستہ ہو، کیونکہ جس طرح زمین اپنی
सब्जी निकालती और बाग अपने में बोई हुई चीज़ों को उगाता है, उसी तरह से मालिके खुदावंद तमाम कौमों के सामने सदाकत और हमद उगाएगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत होगी। मुकद्दस पौलुस को कहा तस्सलुनीकियों की कलीसिया के नाम 5 बाब 16 से 24 आयत। हमेशा खुश रहो, बिला नागा दवा करो, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, क्यों ना कि मसीह यीशु में तुम सब की बाबत खुदा की यही मर्जी है। रूह को ना बजाओ, नबूतों की हकारत ना करो, सब बातों का ध्यान रखो, जो अच्छी हो उसे पकड़े रहो, हर एक बदी की सूरत ही से दूर रहो। सलामती का खुदा आप ही तुम्हें बिल्कुल मुकद्दस करे और तुम पूरे पूरे यानी रूह और जान और बदन हमारे खुदावंद यीशु मसीह की आमद तक बिल्कुल बेइल्जाम महफूज रहो। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है, वो ऐसा ही करेगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। जिले मुकद्दस से पहले जो है उन ख़ानदानों को दावत दी जाती है बाई ग्लिशन और इसके अलावा एल्डर सैमुअल, बाई कैसर, बाई कैलवन और बाई परवेज। तमाम गली के अफराद जो है बराए मेहरबानी आ जाए ताकि पाजी जो है आपको बरकत दे। और आज आपकी तीसरी जो शम्मा है कैंडल ऑफ जॉय वो रोशन की जाए।
तुम्हारा जमीन पर खुशी करते हैं सारे आसमान। तुम्हारा जमीन पर खुशी करते हैं सारे आसमान। आसमान 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 आसमान। तुम्हारा जमीन पर खुशी करते हैं सारे खुदावंद आप सबके साथ हो। हमारे लिए आज की इंजील मुकद्दस मुताबिक मुकद्दस यूहन्ना। और एक आदमी मौजूद हुआ खुदा की तरफ से मुरस्सल, जिसका नाम यूहन्ना था। ये शहादत देने के लिए आया ताकि नूर की शहादत दे, ताकि सब उसके वसीला से ईमान लाए। वो खुद तो नूर ना था, लेकिन नूर की गवाही देने के लिए आया था। हकीकी नूर वो था जो हर इंसान को मुनव्वर करता है जो दुनिया में आता है। और यूहन्ना की शहादत यह है कि जब यहूदियों ने यरूशलेम से काहिन और लावी उसके पास ये पूछने को भेजे कि तू कौन है, तो उसने इकरार किया और इनकार ना किया, बल्कि इकरार किया कि मैं तो अल-मसीह नहीं। तब उन्होंने उससे पूछा, फिर क्या तू इलियास है? उसने कहा कि मैं नहीं। क्या तो नबी है? उसने जवाब दिया कि नहीं। तब उन्होंने उससे कहा कि फिर तू है कौन, ताकि हम उन्हें जवाब दें जिन्होंने हमें भेजा है कि तू अपने हक में क्या कहता है। उसने कहा कि जैसा यशायाह नबी ने कहा है, मैं वो हूँ, पुकारने वाले की आवाज बियाबान में, खुदावंद की राह को सीधा बनाओ। और ये जो भेजे गए थे वो फरीसियों में से थे, और उन्होंने उससे सवाल करके कहा कि अगर ना तो मसीह है, ना इलियास, ना अल-नबी, तो फिर इस्तबार क्यों देता है? यूहन्ना ने उनके जवाब में कहा कि मैं पानी से तुम्हें इस्तबार देता हूँ, मगर तुम्हारे दरमियान एक खड़ा है जिसे तुम नहीं जानते, यानी मेरे बाद का आने वाला, जिसकी जूती का तस्मा मैं खोलने के लायक नहीं। ये बातें उर्दन के पार के बैतनिय्याह में वाक़या हुई, जहां यूहन्ना इस्तबार देता था। यहाँ तक आज की इंजील मुकद्दस के वसीला से हम सब के गुनाह माफ किए जाएं। तशरीफ रखें। खुदावंद में मेरे अजीज भाई बहनों, आज से हम खुदा यीशु मसीह की पैदाइश के पहली पैदाइश जो आज से 2023 साल पहले बैतलहम में वाक़या हुई, उसकी तैयारी का आगाज करते हैं। पापा कैथोलिक कलीसिया ने हमारे लिए 4 हफ्ते मुकर्रर किए हैं, जिनमें पहले 2 हफ्तों में हम खुदा यीशु मसीह की आमद सानी यानी कि दूसरी आमद की तैयारी करते हैं। और इसीलिए पहले हफ्ते की तलावत इंजील मुकद्दस और दूसरे हफ्ते की इंजील मुकद्दस पर अगर आपने गौर किया हो तो उसमें आखिरत के बारे में हमें आगाह किया जाता है और बताया जाता है कि हम इस जमीन पर रहते हुए ही अपने आप को तैयार करें, जागें, बेदार हो, दुआ करें, उसकी राह को तैयार करें ताकि हमेशा की जिंदगी पाने के काबिल और लायक ठहर सके। और आज हम
आमद की तीसरी मोमबत्ती रोशन करते हैं, जिसे हम खुशी और शादमानी की मोमबत्ती कहते हैं। और यकीनन जब पहली दो मोमबत्तियों पर शमों पर गौर करते हैं तो पहली मोमबत्ती जो रोशन की गई थी वो कौन सी थी? कौन सी थी? उम्मीद। और दूसरी मोमबत्ती जो रोशन की गई मोहब्बत की मोमबत्ती। तो उम्मीद और मोहब्बत के बगैर आपकी जिंदगी में खुशी का तस्वर भी नहीं किया जा सकता है। अगर हमारी जिंदगी में नाउमीदी हो, अगर हमारी जिंदगी में मोहब्बत की कमी हो, तो हमारी जिंदगी में खुशी का कोई तस्वर ना तो आ सकता, ना ही उसका तस्वर किया जा सकता है। और इसीलिए पाक कैथोलिक कलीसिया ने खास तौर पर इन दिनों में हमें सबसे पहले उम्मीद के बारे में बताया कि हमारी तमाम तर उम्मीद का महवर और मरकज कौन सी ज़ात है? कौन सी ज़ात है? खुदा यीशु मसीह है। हमारी तमाम तर उम्मीदों का मरकज खुदावंद यीशु मसीह है। और इसीलिए हमें भी उस पर उम्मीद रखनी है। उस पर जो उम्मीद रखी जाएगी, उस पर जो उम्मीद की जाएगी, वो कायम रहेगी और वो पूरी होगी। और अगर हमारी जिंदगी में नफरत हो, हसद हो, तो मोहब्बत भी वहां पर नहीं आ सकती। तो इसलिए दूसरे हफ्ते में हमें मोहब्बत के बारे में बताया गया कि हमारी दुनियावी मोहब्बत आरसी हो सकती है, खत्म होने वाली है, ये किसी भी वक्त खत्म हो सकती है। लेकिन जो मोहब्बत खुदा की तरफ से हमें बख्शी जाती है और खुदा की तरफ से हमारी जिंदगी में आती है, वो मोहब्बत हमेशा कायम रहती है। उसका असर हमारी जिंदगियों में हमेशा कायम रहता है। और इसलिए उम्मीद का सफर तय करते हुए हम मोहब्बत की मोमबत्ती तक पहुंचे और मोहब्बत की मोमबत्ती का से सफर करते हुए हम खुशी और शादमानी की मोमबत्ती के पास पहुंचे। और आज से हम उस पहली आमद को याद करते हैं जो आज से 2023 साल पहले बैतलहम में वाक़या हुई, जब खुदा यीशु मसीह इस जमीन पर एक आम इंसान बनकर, एक आम बच्चा बनकर इस दुनिया में इंसानी शक्ल इख्तियार करते हैं और हमारे दरमियान आते हैं। याद करें और गौर करें उस अजीम वाक़या को जो आज से 23 साल पहले इस जमीन पर वाक़या हुआ, लेकिन आज भी उसका असर इस जमीन पर इस कदर गहरा और इस कदर मजबूत है कि आज भी पूरी दुनिया में खुदा यीशु मसीह की पैदाइश के दिन को बल्कि पूरा माह ही बड़े जोर जोश खरोश से सेलिब्रेशन की जाती है, उसकी तैयारी की जाती है। उस दिन को मनाने के लिए हर मुमकिन तरीके से हम कोशिश करते हैं और हर भरपूर तरीके से इस दिन को मनाते हैं। तो ये वो असीम खुशी है जो आज से 2000 साल पहले इस जमीन पर वाक़या हुई, लेकिन ऐसा नक्श जमीन पर उसने छोड़ा है कि रहती दुनिया तक इस वाक़या को याद किया जाएगा और खुशी और शादमानी के साथ इस वाक़े को याद किया जाएगा। और इसलिए जब हम आज खुशी की तीसरी शबा जलाते हैं, तो इसके साथ साथ हमें भी इस बात की दावत दी जाती है कि हम भी खुदा की उस खुशी को अपनी जिंदगी में आने की दावत दें, उस खुशी का तजर्बा करें जो हम तक आने वाली। गडरियों के पास जब खुदा यीशु मसीह की पैदाइश की खुशखबरी पहुंचती है, तो गडरिये अपने जानवरों को छोड़कर, अपने सारे चीजों को छोड़कर खुदा यीशु मसीह के पास, खुदा यीशु मसीह को देखने के लिए अपने घर से निकल पड़ते हैं। और उस जगह पर जाकर वो उस हकीकी खुशी का तजर्बा करते हैं जो खुदा यीशु मसीह के वसीला से उनकी जिंदगी में और उन पर एयान की ज़ाहिर की गई। इसी तरह से मजूसियों की जिंदगी को देखें कि मजूसियों के पास दुनियावी तौर पर किसी भी चीज की कमी नहीं, उनके पास हर एक चीज थी, लेकिन जब उन्होंने मशरक में सितारा देखा तो वो
उस सितारे का पीछा करते हुए उस मकाम तक पहुंचे, उस जगह तक पहुंचे जहां पर खुदा यीशु मसीह पैदा हुए थे, खुदा यीशु मसीह की पैदाइश हुई। और वहां पर आकर वो भी उस हकीकी खुशी का तजर्बा करते हैं जो खुदा यीशु मसीह के वसीला से इस दुनिया में आई थी और उन्होंने उस खुशी का तजर्बा किया। हम भी जब इन दिनों में खास तौर पर हमें पाक मां कैथोलिक कलीसिया तैयारी का मौका देती है कि हम रूहानी और ईमानी तौर पर अपने आप को तैयार करें, ताकि खुदा के वसीला से जो खुशी और शादमानी हमें मिलती है, वो खुशी वो इलाही खुशी जिसका मौका और जिसका सरचश्मा खुदा के साथ, वो हमारी जिंदगियों में आए और हम इस खुशी को पाकर खुदा का शुक्र अदा करने वाले हों और खुदा की हमद सताइश करने वाले हों। इसी खुदा ने मेरे अज़ीज़ भाइयों बहनों, जब हम उम्मीद की बात करते हैं, जब हम मोहब्बत की बात करते हैं, जब हम खुशी की बात करते हैं, तो इसके लिए यकीनन जरूरी है कि हम अपनी जिंदगी से उन तमाम गैर जरूरी रवैयों को और गैर जरूरी चीजों को निकालें जो हमारी इन चीजों में रुकावट। सबसे पहली बात तो नाउम्मीदी के होते हुए हमारी जिंदगी में उम्मीद कभी नहीं आ सकती। अगर हमारी जिंदगी में नाउम्मीदी है तो हमारी जिंदगी में उम्मीद नहीं आ सकती। लेकिन आमद के इंयाम में खुदा अपने पाक कलाम के जरिए से हमें इस बात की तसल्ली देते हैं और इस बात के बारे में बताते हैं कि हम इन दिनों में नाउम्मीदी को खैर बात कहें और अपना तवक्कुल और अपना भरोसा और अपनी उम्मीद किस पर रखें? किस पर रखें? खुदा पर रखें, खुदा यीशु मसीह पर रखें, क्योंकि वो जल्द आने वाला है। और वो तमाम लोगों को जो तारीकी में बैठे हुए हैं, जो मायूस हैं, जो नाउम्मीद हैं, वो उनको अपनी वसीला से खुशी और बरकत अता करने वाला है। और इसलिए इन दिनों में हमें अपनी जिंदगी की उन तमाम नाउम्मीदियों को जो हमें जकड़े हुए हैं या हमारी जिंदगी में है, उनको अपनी जिंदगी से खैर बात कहें और खुदा की उम्मीद को अपनी जिंदगी में जगाएं। खुदा की उम्मीद, खुदा से उम्मीद रखें और यकीनन वो खुदा आपकी उम्मीदों को पूरा करे। और अगर हम मोहब्बत की बात करें तो हम देखें कि अगर नफरत और हसद के एहसास और जज्बात मेरी जिंदगी में है, हमारी जिंदगी में है, तो मोहब्बत वहां पर क्या नहीं कर सकती। मोहब्बत वही उसी वक्त आपकी जिंदगी में क्या करेगी और उस मोहब्बत का तजर्बा उसी वक्त हम करेंगे जब नफरत के और हसद के और गुस्से के एहसास और जज्बात मेरी जिंदगी से दूर होंगे या उनको हम खैर बात करें। तो इन दिनों में हमें इस बात की दावत भी दी जाती है कि हम अपनी जिंदगी के उन तमाम रवैयों को खैर बात कहें जिनके जरिए से हमारी जिंदगी में गुस्सा आता है, जिनके जरिए से हमारी जिंदगी में नफरत आती है, जिनके जरिए से हमारी जिंदगी में हसद के जज्बात पाए जाते हैं, ताकि हमारी जिंदगी से ये गैर जरूरी रवैये खत्म हो और इन गैर जरूरी रवैयों की जगह कौन सी चीज जगह ले? खुदा की मोहब्बत इनकी जगह ले। और वो मोहब्बत जब हमारी जिंदगी में होगी तो हम यकीनन इस जमीन पर खुदा के अच्छे गवाह बन सकते हैं। और आज जब हम खुशी और शादमानी की मोमबत्ती जलाते हैं तो आज हमें इस बात की दावत दी जाती है कि हम इस दुनिया की तमाम खुशियां जिनके पीछे हम लगे रहते हैं और जिनकी ख्वाहिश हम अपने दिलों में रखते हैं, उनके साथ साथ हम खुदा की हकीकी मोहब्बत को भी, हकीकी खुशी को भी अपनी जिंदगी में पालें और उसकी ख्वाहिश अपने दिलों में रखें, क्योंकि खुदा यीशु मसीह
हमें इस जमीन पर अपना आप सौंपने के लिए, अपना बदन और खून देने के लिए आता है, ताकि हम उसके वसीला से हमेशा की जिंदगी पा सकें। इशाया नबी आज की पहली तिलावत में बड़ी खूबसूरत बात हमारे सामने करते हैं और कहते हैं कि माल के खुदावन की रूह मुझ पर है और उसने मुझे मसा किया है ताकि मस्कीनों को खुशखबरी दूं। उसने मुझे भेजा है कि शिकस्ता दिलों को दुरुस्त करूं और असीरों को आजादी और कैदियों को रहाई की बशारत। वो सारे ये अच्छे काम किस लिए करता है? क्योंकि उस पर खुदा का पाक रूह और रूह खुदावन मुझ पर है और मैं इसलिए इस काबिल हुआ हूं कि कैदियों को रहाई, मस्कीनों को खुशखबरी, शिकस्ता दिलों को दुरुस्त करूं और कैदियों को रहाई के नबीद अता करूं। तो आज हमें भी अपनी जिंदगियों में देखने की जरूरत है कि क्या मेरी जिंदगी में खुदा का पाक रूह मौजूद है या नहीं। क्या हम इशाया नबी की तरह कह सकते हैं कि रूह खुदावंद मुझ पर है और मैं इस काबिल हुआ हूं उस रूह खुदा की वजह से कि लोगों के साथ अच्छे सलूक के साथ रह सकूं, लोगों के साथ प्यार और मोहब्बत के साथ रह सकूं, लोगों की जिंदगी में उनकी उम्मीदों को बहाल करने का जरिया बन सकूं। क्या हम ऐसा कह सकते? क्या रूह खुदावंद मुझ पर है? क्या रूह खुदावंद आप पर है? रूह खुदावंद आप पर है? रूह खुदावंद हम पर है कि नहीं है? रूह खुदावंद अगर हम पर है तो फिर हमारी जिंदगियों में उसका असर भी होना चाहिए। रूह खुदावंद अगर मुझ पर है तो उसने मुझे मसा किया है कि मस्कीनों को खुशखबरी दूं। हमने अपने इन दिनों, खास तौर पर आमद के इन दिनों में कितने मस्कीन लोगों की मदद या उनकी मदद के लिए हमने अपना पहला कदम उठाया। कितने मायूस लोगों के लिए हम खुशी और उम्मीद का बायस बने। कितने उन खानदानों के लिए जो लड़ाई झगड़े के शिकार है उनमें सुलह शांति का बायस हम बने। कितने खानदानों में हम बने। अगर रूह खुदा मुझ पर है तो ये अच्छी नेकियां मेरी जिंदगी से जाहिर होनी चाहिए। मुझे इस बारे में बताने की या कहने की जरूरत ना पड़े कि मैंने खुदा के लिए काम करना है, मैंने खुदा के मिशन को आगे लेकर जाना है, मैंने खुदा के बाशत को फैलाने के लिए अपना काम करना है। अगर तो रूह खुदा मुझ पर है तो ये सारे काम और नेकियां मुझसे, मेरी जिंदगी से खुद जाहिर होती जाएगी। इनको बताने की या किसी को कहने की जरूरत इसके लिए नहीं पड़े। उसी तरह से मुकद्दस यूहन्ना की जिंदगी को देखें कि मुकद्दस यूहन्ना पर भी खुदा का पाक रूह है और इसीलिए वो इस बात का इकरार करता है कि मैं उसकी जूती का तस्मा खोलने के भी लायक नहीं। उसकी जूती का तस्मा खोल के, हालांकि अगर मुकद्दस यूहन्ना चाहते तो वो एक बड़े नबी बन सकते थे या अपने आप को बादशाह के तौर पर पेश कर सकते थे, अपने आप को मसीहा के तौर पर पेश कर सकते थे। लेकिन रूह खुदा का फसल देखें कि जब इंसान की जिंदगी में रूह खुदावंद होता है तो उसमें आजिज़ी और इनकिसारी का पहलू भी पाया जाता है। और इसलिए मुकद्दस यूहन्ना इस बात का बड़ा इकरार करते हैं कि मेरे बाद जो आने वाला है वो मेरे बाद जो आने वाला है तुम्हारे दरमियान खड़ा है जिसे तुम नहीं जानते, यानी मेरे बाद आने वाला जिसकी जूती का मैं तस्मा खोलने के भी लायक नहीं। तो इन दिनों में हमें अपनी जिंदगी में आजिज़ी और इनकिसारी को भी अपनाना है। हमें अपनी जिंदगी में आजिज़ी इनकिसारी को भी अपनाना है, क्योंकि खुदा के पाकलाम का पैगाम यही है। आमद के
ऐयाम का पैगाम यही है कि हम आज से और इंकिसारी में आगे बढ़े, खुदा के पाक रूह को अपनी जिंदगी में पाए और खुदा के पाक रूह से मामूर होकर इस जमीन पर खुदा के नाम की गवाही। और कदस पौलुस रसूल आज की दूसरी तिलावत में खुश रहने का तरीका बताते हुए सबसे पहली बात क्या करते हैं कि खुश रहो और बिला नागा दुआ करो। तो उन्होंने बड़ा इजी हल या कुलिया बता दिया है कि अगर आप अपनी जिंदगी में खुश और मुतमईन रहना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, क्या करना होगा, दुआ करनी होगी। और इसके साथ साथ दूसरी बात कि हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, हर एक बात में शुक्र। अगर आप जिंदगी में खुश रहना चाहते हैं तो सबसे पहली बात बिना नागा दुआ करो, बिना नागा दुआ करो। अपनी जिंदगी के 24 घंटों में से कोई 5 से 10 मिनट खुदा के लिए आप निकालें तो आप देखेंगे कि आपका पूरा दिन खुशगवार गुजरता है और आप मुतमईन रहें, आप दिली तौर पर मुतमईन रहें। और हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, हर एक बात में शुक्रगुजारी कि खुदा ने कितना रहम और फजल मुझ पर किया हुआ। नहीं, इत्मादी तौर पर अगर हम देखें तो खुदा ने कितना रहम और फजल हमें हर एक इंसान पर किया हुआ। हमारी कोई साथी काबिलियत नहीं है और ना ही कोई सलाहियत, लेकिन इसके बावजूद भी खुदा ने हम पर रहम और फजल की निगाह की हुई है और इसलिए हमें उसका शुक्रगुजार होना है, हमें उसकी शुक्रगुजारी करनी है। और जब हम दुआ करते हैं, जब हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं तो यकीनन हमारी जिंदगी में खुदावंद की खुशी रहेगी, वो खुशी जो इलाही है, वो खुशी जो हकीकी है। खुदावंद आज आप सबको बड़ी बरकत अता करें। आज के पाक कलाम के वसीला से आपके सब खानदानों को खुदावंद बड़ी बरकत अता करें ताकि हम भी खुदा के पाक रूह का तजर्बा करें और मुकद्दस यूहन्ना की तरह खुदा यीशु मसीह के नाम की गवाही इस जमीन पर देने वाले बने। खुदावंद आज के पाक कलाम के वसीला से आप सबको और आपके तमाम खानदानों को बड़ी बरकत अता फरमाए, मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से। आए हम सब खड़े होकर अपने मसीही ईमान का इकरार करें। रसूलों का अकीदा मैं मानता हूँ और यीशु मसीह का जो उसका इकलौता बेटा हमारा नाम है और उस की फितरत से पेट में मिला, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, उसने पैंतुस पिलातुस के अगले दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया, दफन किया गया, बरज़ख उतरा, तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा कादर मुतली बाप के देने आके बैठा है, वहाँ से मुजीदों और मुर्दों की अदालत के लिए आने वाला है। मैं मानता हूँ मुक़द्दस पर पाक कलीसिया मुकद्दसों की शराकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जीवने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। आमीन। आज सो भी वक्त है कि हम अपनी दुआएं और इल्तिजाएं खुदा के सुर पेश करें, दुआ भी करें आज के पाक कलाम के लिए कि प्यारा खुदा आज के पाक कलाम के वसीला से हम सबको ईमान की मजबूती अता करें ताकि हम खुदा के पाक रूह का तजर्बा अपनी जिंदगी में करें और हमेशा इस जमीन पर खुदा के नाम की गवाही देने वाले बने। हम इस मकसद के लिए खुदा से दुआ करें कि क़यामत के इन बाबरकत अयाम में खुदा हमें अपना पाक रूह और अपना पाक फजल अता करे और हमारे घरानों की तमाम मुश्किलात, परेशानियों, दुख और तकलीफों को दूर करे। हम इस मकसद के लिए खुदा से दुआ करें। खुदा हमारी दुआ सुन कि मेहरबान खुदा उन बच्चों को अच्छा रोजगार अता करे जो कि बरूनी मुल्क में है, कि खुदा उनकी मंजिलों को आसान करे और खुदा कदूस उनके बंद रास्तों को खोले और खुदा उन्हें अच्छा रोजगार अता करे। अजीज इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। हम दुआ करें तमाम बेरोजगारों के लिए कि खुदा उन सबको रोजगार अता करे और सबके काम काज में बरकत बख्शे, खासकर जो आजकल काम काज की वजह से परेशान है।
कि खुदा सब के काम काज में बरकत बख्शे ताकि अपने घरानों के अच्छे तरीके से कफालत कर सकें। अजीज इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदावंद हमारी दुआ सुन। हम दुआ करें तमाम बेऔलाद जोड़ों के लिए जो कि हमारे खानदानों में, हमारी कलीसिया में, अज़ीज़-ओ-क़ारब में है, तो खुदा मेहरबान बाप अपने रहम की नज़र उन पर करे और उनको औलाद की बरकत अता करे। अजीज इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। दुआ भी करें अपने उन तमाम भाइयों बहनों के लिए जो खुदा से दूर जा चुके हैं, जो तारीकी में हैं। खुदा उन पर अपने नूर की रोशनी चमकाए और उन्हें अपनी तरफ मुतवज्जो करे। हम इस मकसद के लिए खुदा से दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। ऐ खुदा हमारी पनाह कुव्वत के सरचश्मे जो दुआएं और इल्तिजाएं हमने मांगी हैं और जो हमारे दिलों में हैं, उन्हें सुन और कबूल फरमा और बख्श दे कि इनका असर हम तक पहुंचे। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से आमीन। तशरीफ रखें। खुशी करते हैं सारे आसमान।
عزیز بھائی بہنوں دعا کریں آپ کے تمام ہدیے اور نذرانے ہماری یہ قربانی خدا کا عظمت ایک باپ کے حضور میں مقبول ہو. خدا اس قربانی کو آپ کے ہاتھوں سے اپنے نام کی بڑائی کے لیے اور ہماری بلکہ اپنی ساری کلیسیا کے فائدہ کے لیے منظور فرمائے. آئے ہم دعا کے لیے اپنے سروں کو جھکائیں. اے خداوند ہمارے خدا اپنی کلیسیا کو یہ بخش دے کہ مومنوں کی عقیدت کی قربانی لگاتار تیری نظر کی جاتی رہے تاکہ ہم سب تیری عبادت اور تیری ستائش کریں اور تیری نجات ہم میں مکمل طور پر اثر پائے مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے. خداوند آپ کے ساتھ ہو. ہم خدا کی طرف دھیان لگائیں. ہم خداوند اپنے خدا کا شکر کریں. یہ واجب بہت درست ہے. یہ واقعہ واجب و نہایت مناسب ہے قدوس پاک کہ ہم ہر وقت اور ہر جگہ تیرے پیارے بیٹے کے وسیلہ سے تیرا شکر ادا کریں. ہر زمانے میں نبیوں نے اس کے آنے کی پیشن گوئی کی. یوحنا نے اس کی خبر لوگوں کو دی اور کہا یہ ہے خدا کا برہ جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے. ہمیں یہ فضل بخشا گیا کہ ہم خوشی کے ساتھ اس کی پیدائش کی تیاری کریں اور اس طرح ہمیشہ دعا میں سرگرم اور اس کی تمجید میں شادمان رہیں تاکہ وہ ہمیں ہمیشہ دعا میں سرگرم اور اس کی تمجید میں شادمان پائے. اس لیے ہم تمام بیشتر مقصر کے ساتھ مل کر یہ کہتے ہوئے تیری حمد و ثنا بیان کرتے ہیں. قدوس قدوس قدوس
लश्करों के खुदा, आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से मामूर है, आलम बाला पर खोशन। मुबारक है वो जो खुदा के नाम से आता है, आलम बाला पर खोशन। अय मेहमान बाप, तू वाकई कुदूस है, तू पाक है और हर पाक चीज तुझसे आती है। हमारी और अपने इन बच्चों की दुआएं कबूल कर, पाक रूह को भेज ताकि ये नजराने रोटी और मैं पाक और मुतबरिक हूं और हमारे खुदा यीशु मसीह का बदन और खून बने। हमारे खुदा यीशु मसीह ने अपने आखिरी खाने के मौका पर रोटी ली, उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लौट खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते दिया जाएगा। ऐ मेरे खुदावन, ऐ मेरे खुदा। इसी तरह उसने खाने के बाद मैं का प्याला भी लिया, उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लौट पियो, नए और अब्दी अहद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों की गुनाहों की माफी के वास्ते बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। ऐ मेरे खुदावन, ऐ मेरे खुदा। हमारे ईमान का भेद। ऐ खुदावन, हम तेरी मौत का ऐलान करते हैं, हम तेरी क़यामत का इकरार करते हैं कि जब तक तू न आए। बस बाप, हम तेरे बेटे के मरने और जीवने को याद करते हैं, हम जिंदगी की रोटी और निजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हम सबको इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आजिज़ी के साथ इल्तिजा करते हैं, बख्श दे कि हम उसी का बदन और खून लेकर रूह कुदस की तासीर से आपस में एक बने। ऐ खुदा, अपनी कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारे रूहानी बापू फ्रांसिस, हमारे उसका सेबेस्टियन फ्रांसिस शाह और अपने सब खादमों और खादमाओं को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, इसे कामिल मोहब्बत अता फरमा। हमारे उन भाई और बहनों पर नजर कर जो जीवने की उम्मीद रखते हुए सो गए हैं, और खास तौर पर नजर मसीह, अरशाद बीबी, इम्तियाज और सदीक पर असर कर जिन्हें तूने इस दुनिया से अपने पास बुला लिया है। बख्श दे कि जिस तरह मौत में तेरे बेटे के साथ थे, इसी तरह वो जीवने में भी उसके साथ रहे। नीज तमाम रूहों को याद कर और उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हम सब पर रहम कर, ताकि हम खुदा की मुबारक माँ कुंवारी मरियम, हजरत यूसुफ उसका नहायत पाक शोहर, मुबारक रसूलों और उन सब कसों के साथ जहान में तेरी मर्जी पूरी करते रहे, हमेशा की जिंदगी में शरीक हों और तेरे बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह के वसीला से तेरी हम दोस्त सना कर सकें। आमीन। उसी के जरिए, उसी के साथ और उसी में तुझका मुतलक खुदा बाप को रूह कुदस की वहदानियत में कामिल इज्जत और तज़ीम शान हमेशा से हमेशा तक आमीन। आए हम सब अपने निशात देने वाले से हिदायत पाकर उसी तरीके से दुआ करें जो खुदावंद ने हमें सिखाया है। हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक होना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे और जितना तुम्हारे का सर्वनाश हमें आज हमारे गुनाह करने के बल्कि बुराई से बचा। आए खुदा, तुझसे मिन्नत करते हैं, हमें सब बदियों से बचा, इन दिनों में इस्लाम की बख्श, ताकि हम तेरी शफ़क़त की तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने के इंतजार करते हुए हर वक्त गुनाह से आजाद और मुसीबत से महफूज रहें। कुदरत और जलाल हमेशा तक रहे। आमीन। ऐ खुदा यीशु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा, मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर असर कर
اور اسے وہ سلامتی اور اطاعت بخش جو تیری مرضی کے مطابق ہے، آمین۔ اور ہمارے خدا یسوع مسیح کے سلامتی وقت آپ سب کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ بھی ہو۔ ہم سب ایک دوسرے کی سلامتی چاہیں۔ اے خدا کے برے، گناہ کو اٹھا جاتا ہے، ہم پر رحم کر۔ اے خدا کے برے، تو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے، ہم پر رحم کر۔ اے خدا کے برے، تو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے، ہمیں سلامتی عنایت کر۔ عزیز بھائی بہنوں، یہ خدا کا بھلا ہمارے نجات دہندہ جہاں کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے، نہایت ہی مبارک ہے ہم سب جس پاک بھری ضیافت میں بلائے گئے ہیں۔ اے خداوند، میں اس لائق نہیں کہ تو میرے ہاں آئے، لیکن اس طرح تو میرے شفا پائے گی۔ مسیح کا بدن اور خون ہمیں ہمیشہ کی زندگی کے لیے محفوظ رکھے۔ آسمان کا اور زمین کا تو ہے کسا بنی، آسمان کا اور زمین کا تو ہے کسا بنی۔ خدا کے منصوبے کا آج کسا بنی، خدا کے منصوبے کا آج کسا بنی۔ میری خدا نے نظر کی، میری خدا نے نظر کی، ایسا تجھ پہ کرم یہ ہوا، ایسا تجھ پہ کرم یہ ہوا۔ دنیا کی عورتوں میں، دنیا کی عورتوں میں نام تیرا بلند ہوا، نام تیرا بلند ہوا۔ اے پاک کنواری مریم، اے پاک کنواری مریم، فرض تجھ پہ خدا کا ہوا، فرض تجھ پہ خدا کا ہوا۔ میری جان خدا کی بڑائی دل سے کرنے لگی، میری جان خدا کی بڑائی دل سے کرنے لگی۔ پورے دنیا سے گھبرائی آگے بڑھنے لگی، پورے دنیا سے گھبرائی آگے بڑھنے لگی۔ مجھے قوت دینے تجھ پہ، مجھے قوت دینے تجھ پہ آپ روحا سایہ ہوا، آپ روحا سایہ ہوا۔ دنیا کی عورتوں میں، دنیا کی عورتوں میں نام تیرا بلند ہوا، نام تیرا بلند ہوا۔
कम हिम्मतों से कह दो कि हौसला करें और ना घबराएं, क्योंकि खुदा हमारा आने को है जो हमें निजात देगा। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। आए खुदा, हमारे खुदा, तेरी रहमत के लिए हम जो सिर इल्तिजा करते हैं, बख्श दे कि इस पाक की बात की मदद से हम गुनाहों पर पशेमान हो और इस तरह आने वाली ईद की संजीदगी के साथ तैयारी करें। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से मसीह यीशु में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। जैसे कि आप सबको पता है कि मेरी अम्मी काफ़ी देर से बीमार है, तो पहले भी एक दो दफ़ा मतलब उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो हम डॉक्टर के पास लेके गए तो खुदावन ने इनको तंदुरुस्ती दी। तो इसी तरह अभी भी अम्मी की तबीयत जो थी काफ़ी ख़राब थी, तो हम इनको सिविल में लेके गए, उन्होंने भी मतलब के जवाब दे दिया। फिर उन्होंने हमें रेफ़र किया कार्डियोलॉजी में भी फादर जी आए, उन्होंने प्रे वगैरह की। तो रात को तकरीबन 12 बजे उन्होंने भी हमें मतलब के वो ना कर दिया रेफ़र, उन्होंने आगे गुजरांवाला में कर दिया। तो बाद में हम गुजरांवाला में जब गए हैं तो तकरीबन 3 बजे का टाइम था, तो उन्होंने भी जवाब दे दिया था कि आपका पेशेंट जो है बहुत सीरियस है, तो मतलब चांसेस जो है ना बहुत कम है। तब हमने प्रे की, मैंने सबको कॉल की कि मतलब अम्मी के लिए दुआ करें। तो इतनी हमने दुआ की कि मैंने रो रो के खुदावन से दुआ की कि खुदावन तेरे अयाम है, तेरी आमद के अयाम है, तो हम मायूस नहीं होना चाहते, तो हमें मोजज़ा चाहिए। हम गुनहगार हैं और हमें मोजज़ात की ज़रूरत है। और खुदावन क्योंकि यकीनन खुदा मोजज़ात का खुदा है, जब हम उससे रो के दुआ करते हैं ना तो वो कभी भी किसी को मायूस नहीं होने देता। तब डॉक्टर जो थे वो बिल्कुल उन्होंने मतलब अपने जो उनकी फॉर्मेलिटीज़ थी वो उन्होंने पूरी करवा ली, उन्होंने साइन वगैरह करवा लिए थे। तो बिल्कुल ही हम ना उम्मीद हो गए थे, लेकिन खुदावन ने हमारी उम्मीद को जगाया। और तब मैं दुआ कर रही थी और डॉक्टर ने मतलब कि मैं दरवाज़ा भी नॉक कर रही थी आईसीयू का ना, तो वो दरवाज़ा नहीं थे खोल रहे। तो मैं दुआ कर रही हूँ तो रो रही हूँ साथ में से वाला, तो अचानक से ना मेरे मुंह से निकला हालेलुया। दुआ करते दौरान ना मेरे मुंह से हालेलुया निकला है, मेरे दिल को ऐसे सुकून सा हो गया ना। फिर मेरे मुंह में ज़बूर आया, शुक्र यहोवा दाही करो। मैं इतनी खुश हुई, मैं कहा खुदाया पता नहीं कोई तेरा ही मोजज़ा है। मेरे दिल में ये आया कि शायद मोजज़ा हो गया है। मैं 7 बजे उठी हूँ, मैंने दरवाज़ा नॉक किया आईसीयू रूम का ना, तो भाई को मैंने बोला कि आप जाके ना एक दफ़ा उनकी ना हार्ट बीट और जो है ना ब्लड प्रेशर वो बता दें। उन्होंने बताया, खुदावन का शुक्र है कि उनका ब्लड प्रेशर जो है ना वो ठीक हो गया था। बाद में उनको डायलिसिस होने थे उनके, तो हम सब यही दुआ कर रहे थे कि उनके डायलिसिस ना हो। तो खुदावन का शुक्र है कि जब हमने डॉक्टर ने यही कहा है कि इनके डायलिसिस होने ही हैं, तो जब हमने रिपोर्ट करवाई तो उनके वो भी मतलब कि उनकी रिपोर्ट जो है वो क्लियर आ गई थी। बाद में ब्लड का था उनका कि इनका ब्लड का अरेंज करें। तो ऐसे ही हम रोते जा रहे हैं, समझ नहीं आ रही कि क्या करें, लेकिन खुदावन ने अपना मोजज़ा दिखाया हमें उसने मायूस नहीं होने दिया। और अम्मी की जब आखिरी रिपोर्ट थी ब्लड की, तो आखिरी रिपोर्ट जो है वो भी क्लियर आ गई कि अम्मी को ब्लड भी नहीं लगना। तो खुदावन का शुक्र हो कि खुदावन ने उन्हें नई ज़िंदगी दी है। और कभी भी हम मायूसी में भी हों तो अगर हम रो के दुआ करें ना तो खुदावन हमारी दुआएं सुनता है और उनका जवाब देता है, और हम खुदा का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मुस्लिम लोग थे और मैं दुआ कर रही थी, मैं कहा खुदाया कि तू अम्मी को शिफा दे दे। और यहाँ पे जो मुस्लिम लोग हैं मैं इनको बताना चाहती हूँ, मैं इनको बताऊँ। तो ये वो आंटी इतने हम बाद में जब डॉक्टर ने कहा रिपोर्ट्स क्लियर है, तो आंटी कहते मैं कहा नहीं मोजज़ा हो गया है। आंटी कहते हैं चल दुआ कर साढ़े वास्ते भी मोजज़ा हो जाए। मैं कहा आंटी हमारा खुदा तो मोजज़ात का खुदा है, हम मोजज़े करना है। आखिर में मैं खुदा के नाम से बता दूँगी, जे ज़माने या कलाम विचों चुनना पिया, जे ज़माने या कलाम विचों चुनना पिया,
जिस तरह के 22 दिसंबर के हवाला से और कादमुद्दीन खुदा बाप और बेटे मुक़द्दस की बरकत और फसल आप सब पर हमेशा नाज़िल करे। हमारी इबादत हो चुकी, खुदा के सलामती और शादमानी में हमेशा कायम रहे।